नाम आसिफा बानो, उम्र 8 साल, वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ। 10 January 2018, it was 12:30 p.m. She had gone for grazing horses in the nearby forest. Later in the evening, horses returned, but she did not. 17 जनवरी 2018 को उसकी बॉडी वापस आती है। बॉडी नहीं, दरअसल डेड बॉडी वापस आती है। नाउ लेट्स फिगर इट आउट कि बीच में क्या हुआ। रादर आई शुड से लेट्स फिगर इट आउट कि किसकी वजह से हुआ। क्योंकि हमारी इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि हम विक्टिम पर तो बहुत बात करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं, टैग करते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो लोग विक्टिम बनने के लिए उन विक्टिम को मजबूर करते हैं उनका जिक्र हम बहुत कम करते हैं। मैं इस जिक्र से शुरुआत करूंगा, यानी कि रेपिस्ट एंड पीपल दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस कठुआ रेप केस ऑफ आसिफा। नंबर 1, सांजी राम, retired revenue official of the government of India. Number 2, his son Vishal. Number 3, his nephew believed to be juvenile, his friend Mannu, and certain police officers, those who were involved in it. दीपक खजूरिया, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज और आनंद दत्ता. Now let's proceed with the detailing as per the fact of charge sheet and some facts noted and quoted by NDTV and Indian Express, etc. Friends, NDTV reported the mastermind behind this plan is Sanji Ram. Remember? Retired revenue official of government of India. मेरा पढ़ा लिखा इंडिया. He planned the rape and subsequent murder with the aim to dislodge the Bakhirwal community from Rasna, and for this particular job, he invited his nephew to participate in this heinous act along with his friend Munna. बाबा, दोस्ती यारी है, मिल बांट के काम किया जाए, रेप भी मिल बांट के किया जाए. Now, according to Indian Express, the juvenile raped the girl in the jungle, after which they took her to the temple Devasthana, where they hid her under the table and sedated her by forcefully tablets in the throat on an empty stomach for continuous 3 days. मतलब जिस उम्र में उसको आइसक्रीम और चॉकलेट खिलानी चाहिए, उस उम्र में she was having drugs from those bloody morons. बट अभी इतना काफी कहां था। वो कहते हैं ना कि हवस की कोई उम्र नहीं होती, एक हवस है जो कभी मिटती नहीं। On January 11, as reported by the Times of India, the juvenile informed his cousin Vishal Jangotra about the kidnapping of the girl over the telephone and asked him to return from Meerut if he wanted to satisfy his lust. मतलब क्या मतलब दावत चल रही है, बारात चल रही है कि यार चलो दूसरे शहर से तुम्हें बुलाया जा रहा है, नहीं क्या चल क्या रहा है, मतलब करना क्या चाह रहे हो भाई. The following day, the parents of the missing girl inquired at Devasthana about the whereabouts of their missing daughter, and Asifa's father Yusuf lodged a complaint at Hiranagar station on January 12. और इसके बाद जो हुआ वो हुआ जिसके लिए हमारा भारत देश जाना चाहता है, यानी कि करप्शन. The search party that was sent by Hiranagar station included a man named, rather I should say, bastard named Deepak Khajuria, another rapist who was a part of the kidnapping and knew of Sanji Ram plan the entire time. Only later, when an in-depth investigation began, then Head Constable Tilak Raj and Sub-Inspector Anand Datta were bribed with sum of rupees 1.5 lakh in order to what? In order to handle the situation. मेरा जुगाड़ू देश सब संभाल लिया जाएगा. Over the course of 3 days, the drugged girl was repeatedly raped, and it was January 13 that Sanji Ram decided that it was time to kill the girl and dumped her in the forest. मतलब कि यहाँ पे जैसे शादी का मुहूर्त चल रहा है कि यार मंगलवार दोपहर आई गेस 12 बजे इसको शादी का पार्ट कर लेते हैं, ठीक है. And while Mannu, Vishal and the juvenile finally prepared to kill the child, Deepak, इन भाई साहब के बारे में हम जिक्र करते हैं, दीपक खजूरिया stopped them for what? किस चीज के लिए? कि भाई मत मारो? No.
Stop them for what? So that he could rape for last time. मतलब कि खाने के बाद कुछ वो होता है ना कि मीठा कुछ खाया जाए यार, मतलब कि यार कुछ डेजर्ट हो जाए, समथिंग रिगार्डिंग दैट वे. तो दीपक साहब जो थे वो उस डेजर्ट की तरह थे कि सब कुछ होने के बाद एक बार उन्हें भी. बट दैट वॉज नॉट इनफ. अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनिए क्या हुआ. खजूरिया फर्स्ट अटेम्प्टेड टू स्ट्रैंगल द गर्ल विद हिज बेयर हैंड्स, बट व्हेन दैट डिड नॉट वर्क ही यूज्ड हर दुपट्टा इंस्टेड. मतलब जो चीज लड़कियों के आंचल को संभालने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, उस चीज से उसका दम घोटने के लिए इस्तेमाल किया गया. Then after that, hit her head twice with a stone just to make sure that she was dead. And on the same 15 January, that was the particular day on which victim body was mercilessly thrown into the jungle. यार अब मेरे को ये बताओ यार कि मतलब क्या चल क्या रहा है ये मतलब क्या हाल क्या हो गया हमारी कंट्री का. आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन नाउ. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल यूथ आई वांट टू पुट फॉर सम पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ माय नेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम एन एजुकेटेड इंडियन एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल यूथ आई वांट टू कोट सम पॉइंट्स. नंबर 1, जो लोग इसको रिलीजन का मैटर लेके चल रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा दैट woman is a religion itself. It is above everything. If she is not there, there will be no survival on this earth. You know that? Rape is rape. Either it is boy, either it is girl. But when it's about the game of girl, then trust me, it's something melancholic and depressing. Number 2, जो लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि रेप की लोकेशन मंदिर थी, मस्जिद थी, उनके लिए बोलना चाहूंगा दैट I will not talk about shit regarding the location of rape, whether it is mosque, whether it is gurudwara, whether it is mandir or anywhere. Dude, rape is rape. Location doesn't matter. तुम अगर किसी मखमल के बेड पे भी करोगे तो भी वो रेप कहलाएगा. अगर तुम किसी मस्जिद की दीवार पे करोगे तो भी रेप कहलाएगा. और अगर किसी मंदिर के गर्भगृह में जाके करोगे तो भी वो रेप ही कहलाएगा. So stop chucking this mind regarding location of this place. Thirdly, I want to say, instead of bragging this melancholic issue as a matter of religion and dirty politics, I want justification. In respect of all youth, I want to say, जितने भी इस सब में इन्वॉल्व हैं, उन सबको सड़क पे लेके आओ, ठीक है? उन सबका बुरा हाल करो, जितना बुरा हाल कर सकते हैं, और उसकी एक लाइव वीडियो बनाओ. एज अ पार्ट ऑफ यूथ मैं बता रहा हूं, हम लोग उसको वायरल करेंगे. और उसके बाद मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई भी इंसान रेप करने के बारे में सोचेगा ना, तो उसका तो छोड़िए, उसके रोंगटे खड़े होंगे, ठीक है? और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन हमारे घर की या हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी. एंड इन द एंड आई वांट टू कोट समथिंग टू दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट. जिसने आसिफा का रेप किया है, तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो. जिसने आसिफा का रेप किया है, तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो. तुमने आसिफा का रेप किया है, जिसको तुम इंसान समझते नहीं हो. तुम लोग जिंदगी में कभी इंसानियत की बात मत करना. तुम लोग जिंदगी में कभी इंसानियत की बात मत करना. तुम खुद इस देश में रहने लायक नहीं हो. एंड टू सम अप, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. इफ अ मैन डजंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वेजाइना, इफ अ मैन डजंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वेजाइना, ही डजंट नीड टू हैव पेनिस. #Justice for आसिफा. जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद.